Hello, dear aspirants. So, let's continue our concept talk. Today, it is more about questions, but concept talk doesn't mean we will not solve questions, and questions doesn't mean कि we will be depending on the formula only, because concepts can be more categorical in nature, right? So, when you study a topic systematically, you will realize कि the demand of UPSC, where the subjective nature comes into the picture, even in the objective as well, you have no need to solve 1,000 examples. You need to classify different possible categories of examples, then decode those categories, revise those categories, and retain those categories. Those are enough to tackle the demand of CSE as well as forest services. So when I say most important questions of factor group, that doesn't mean कि हम यहाँ पर एक पीपीटी में क्वेश्चंस लाएंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे और आपको पढ़कर बता देंगे. It is not like that. It is more about discussion. It is more about decoding some concept. ठीक, involved in questions. So today's target, we will try to decode. तो मैं आंसर तो नहीं कहूंगा, आई विल से कि मैं डिकोड करूंगा द फैक्टर ग्रुप क्यू जेड को. वी विल डिकोड द फैक्टर ग्रुप क्यू जेड एज जेड एम जेड. ठीक, सॉरी, we will decode QZ, ZMZ, we will decode S3, A3, moreover SN, AN. So these are some beautiful structures, these are some beautiful categories of examples जहां से अगर आप यूपीएससी के PYQs को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल गेट n नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो आफ्टर दिस डिस्कशन we will not forget to do the proper analysis of PYQs for both of the exams, CSE and forest services, as far as this topic abstract algebra is concerned in the paper 2. Fair? तो स्टार्ट कर लें अभी. चलिए, तो पहले तो मैं ZMZ से स्टार्ट करूंगा, वो भी बहुत ब्यूटीफुल कैटेगरी है. ठीक, चलिए. So even if you didn't attend the previous concept talk, still you can attend this, but I would like to suggest you don't forget to miss the concept talk of connecting dots for factor groups, subgroups to factor groups. You will get a crystal clear picture of the quotient group is actually what. You will get the idea how UPSC can imagine different type of questions out of the factor group. So today we are trying to tackle those questions itself, but why questions are imagined like this and what is the nature, what is the depth or definition required for factor group. For that you should not miss the concept talk connecting subgroups to factor group. ठीक है, today I would like to just introduce कि whenever you talk कि देखिए ध्यान से, लेट्स कंसीडर ए ग्रुप, लेट्स से G स्टार. ठीक है, एंड H स्टार be a normal subgroup of G star, then GH, that is collection of or left or right cosets AH, A belongs to G, H तो लिखा ही है, for all A belongs to G, is a group with respect to summation of cosets. क्योंकि GH के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कोसेट्स का कलेक्शन है.
तो एलिमेंट्स के बीच में ही तो कंपोज किया जाएगा, उन्हीं के बीच में तो ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा। तो GH जो होता है एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो लेट इफ G जो है वो Z कॉमा प्लस ले लिया, जो ग्रुप स्ट्रक्चर लिया, H जो है वो ले लिया 4Z कॉमा प्लस। ठीक। अब आप ये डिफाइन करना चाहते हैं कि GH होगा क्या, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई Z4Z। Again, if you are not aware the composition of cosets, you should not miss the concept talk which I talked to you here earlier. So Z4Z, it will be containing the elements like this. ठीक. Moreover, if you talk about what is ZMZ, so this will be MZ 1 plus MZ 2 plus MZ M minus 1 plus MZ, तो M minus 2 लिख दें, M minus 1 plus MZ. That is, if you ask what is the number of element in ZMZ, so that is the number M, right? So ZMZ, ध्यान से देखिएगा, is a group with respect to composition of cosets. ठीक। ZMZ, अब अगर आपने MZ के कोसेट्स कैसे लिखे जाते हैं, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक को जरूर अटेंड करें, वहां मैंने ये कोसेट्स लिखना बताया है। आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में जो हमारा पर्पस है, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस। इफ यू ऑब्जर्व हियर, देखिए ध्यान से, 1 प्लस MZ का कंपोजिशन 2 टाइम्स, व्हाट डज इट मीन? कंपोजिंग 1 प्लस MZ 2 टाइम्स, so this can be written like composition AH, composition BH is given as A composition BH के साथ में, right? So this is 2 plus MZ, right? If you, sorry, 1 plus MZ. If you write 1 plus MZ का composition 3 times, it will give you 3 plus MZ. If you write 1 plus MZ का composition 4 times, it will give you the element like this. Moreover, what you can do here is ZMZ के जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 प्लस MZ को M टाइम्स कंपोज करोगे, you will get MZ itself, and MZ is the identity element of the group ZMZ. So what you can say here is order of what you can say कि 1 plus MZ generates the group ZMZ. बोलो हाँ या ना, एकदम पक्का विश्वास के साथ कहिए। ZMZ is a group which is generated by an element of that group. इसका क्या कहा जाए? इसका मतलब है कि ZMZ is a cyclic group. तो एक ब्यूटीफुल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आती है, दैट इज ZMZ के बारे में। MZ क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ Z। अगेन आई वुड लाइक टू से एग्जांपल्स मिस नहीं करना है प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक के। आज हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं, तो दैट इज, देखिए ध्यान से, ZMZ is a cyclic group of order M.
अब आप कहेंगे सर आप और क्या बताने वाले थे हमको, तो मैं ये बताने वाला था, देखिए ध्यान से, वी नो दैट ईच साइक्लिक ग्रुप of order m is isomorphic to Zm. So what is the exam point for us? Exam point means इसको याद रखना है कि भाई ZMZ the factor group it is isomorphic to Zm. ठीक है? अगर आपको विजुअलाइज करना हो तो कभी भी बच्चा बनने से तंगहाली नहीं है। देखिए, मान लो G ले लिया Z, H ले लिया 3Z, ठीक है, तो GH क्या होगा? अच्छा, हम लोग 4Z पे बात कर ही रहे हैं तो 4Z पे ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो दिस विल बी 4Z, 1 प्लस 4Z, 2 प्लस 4Z, 3 प्लस 4Z। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बता दो ये ग्रुप भी बन रहा है कि नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स यू कैन इजिली चेक इट आउट। So if you compose these elements, so this will be 4Z, 1 plus 4Z, this is 3 plus 4Z, this is 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, 3 plus 4Z, 4 plus 4Z is 4Z itself, 2 plus 4Z, 3 plus 4Z, 4 plus 4Z is the 4Z itself, so this is 1 plus 4Z, 3 plus 4Z, this is 4 plus 4Z is the 4Z itself, this is 1 plus 4Z, this is 2 plus 4Z. So this is the Cayley table of Z4Z. So Z4Z is a group. Also we can observe, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर मैं 1 प्लस 4Z को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z का 2 बार कंपोज करूंगा, इट विल गिव मी 4 प्लस 1 2 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z को 3 टाइम्स कंपोज करूंगा, इट विल गिव मी 3 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z को 4 टाइम्स कंपोज करूंगा, इट विल गिव मी 4 प्लस 4Z, दैट इज 4Z itself, right? So what you can say, this implies 1 plus 4Z is the generator of the group Z4Z. Also Z4Z has 4 elements only. एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। So that is Z4Z is a cyclic group of order 4. So Z4Z must be isomorphic to Z4 itself. क्लियर है? किसी को कोई डाउट ZMZ के बारे में? कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स पे दिक्कत होगी तो बोल चुका हूं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक को इग्नोर मत कीजिए, यू विल गेट द बेटर पिक्चर देयर, राइट? चलिए, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट टॉक को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया था, एक पार्ट में ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने उसको 2 सेशंस में ब्रेक कर दिया, तो उसके बिना इस सेशन को देखने का कोई मतलब है नहीं आपके लिए, और अगर मैं उस पूरे को यहाँ रिवाइज करूंगा तो फिर से तीसरा सेशन लेना पड़ेगा है ना? चलिए, तो पहला कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल में अपने को मिला है ZMZ, ठीक? अब हम आते हैं अगली कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल पर। And that is very beautiful, you can say the highly important for your exam CSE and forest services both.
ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम से क्लियर पिक्चर दिखाई दे जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको अगले 5-7 मिनट वेट करना होगा, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत पेशेंस के साथ चीजों को सुनना होगा, तभी डॉट्स कनेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करने वाले हैं क्यू जेड। ठीक है, तो ये जो फैक्टर ग्रुप है क्यू जेड, कैसे इसको पिक्चराइज करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस इससे यूपीएससी पूछता है लगातार, और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए पहले क्यू जेड का कंस्ट्रक्शन करें, उसके कोसेट्स के कंपोजिशंस को समझें, और फिर देखेंगे कि उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में इतने महत्वपूर्ण सवाल क्यों बन जाते हैं, और क्यों बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। चलिए, तो इफ यू आस्क मी कि सर क्यू जेड सेट दिखेगा क्या, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ, क्या है ये, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कोसेट्स ऑफ z इन q, क्योंकि इतना तो हम जानते ही हैं, z इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ q इफ यू टॉक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। फिर तो z के जितने पॉसिबल कोसेट्स हो सकते हैं q में, उनका जो कलेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं qz से। ठीक है, यही तो बात हुई। चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर कहें कि भाई साहब इसके अंदर सम r प्लस, चूंकि कंपोजिशन r है, फॉर ऑल r बिलोंग्स टू q टाइप ऑफ एलिमेंट्स यहां पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0+z, दैट इज z मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3+z, ये मिल जाएगा। 4/5+z, तो इस टाइप के एलिमेंट्स जो होंगे वो qz के अंदर दिखाई देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज किया जाए, देखिए ध्यान से, अगर कोई आपसे कहे 8/5+z, देखना ध्यान से, दिस कैन बी रिटन एज 1+3/5। ठीक, अब दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज कंपोजिशन 1+z, क्या होगा, दैट इज z इटसेल्फ। इसका कंपोजिशन क्या मिल गया, और आराम से जैसे मैंने कोसेट्स लिखना सिखाया था उस तरफ से भी आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 8/5+z इज नथिंग बट 3/5+z इटसेल्फ। ऐसे ही आप इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख सकते हैं qz में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, qz is an infinite order group। ठीक, देखना ध्यान से, लेट्स ट्राई। अब जो ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है जहां से यूपीएससी का काम शुरू होता है वो ये है, क्या है, लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, चाहे वो सीएससी का एग्जाम हो चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज का हो। आप चाहे तो PYQs ऑब्जर्व कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप QZ, क्या चाहते हैं अब आप ये विजुअलाइज करना चाहते हैं कि QZ के पास जो एलिमेंट्स आप लिख रहे हैं ये फटाफट, इनके ऑर्डर्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, देखना, सिंस अगर मैं
1/3+z एक एलिमेंट उठा लूं, इसको 2 बार कंपोज करूं, तो क्या हो जाएगा? कंपोजिशन ऑफ दीज टू कोसेट्स, कंपोजिशन AH BH इज डिफाइंड एज ABH। तो 1/3, चूंकि हमारा कंपोजिशन है एडिशन, so this will be written like this, right? अब क्या हुआ, चूंकि QZ एक ग्रुप है और Z जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, GH का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है H, तो QZ एक ऐसा ग्रुप है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट है Z। अगर मुझे इस एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए तो इस एलिमेंट को मैं बार बार कंपोज करता जाऊंगा और देखूंगा कि फर्स्ट टाइम कब ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो 2 बार कंपोज करने पर तो Z नहीं दिया, फिर से 3 बार कंपोज करते हैं, चलो एकदम बच्चा लोग की तरह। ठीक, तो दिस विल गिव यू, and Z is the identity element of the group QZ. So this implies order of the element 1/3 plus Z is 3 in the group QZ. अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या मजा आया? देखना ध्यान से, मजा तो मैं दिलाऊंगा। ऑर्डर ऑफ 1/4 प्लस जेड अगर आप देखेंगे ये 4 मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1/5 प्लस जेड देखेंगे ये 5 मिल जाएगा। इस झूठ मूठ का तमाशा आप करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑर्डर ऑफ 8/5 प्लस जेड चाहिए तो दैट इज नथिंग बट, चूंकि 8/5 क्या है, 3/5 प्लस जेड, राइट। अब 3/5 को 2 बार कंपोज कीजिए, 3 बार कंपोज कीजिए, यू विल गेट कि जब आप 3/5 प्लस जेड को 6 टाइम्स कंपोज करेंगे, सॉरी 5 टाइम्स, you will get 15/5 that is 3 plus z, and 15/5 plus z that is 3 plus z that is the z itself. So this implies क्या मिल जाएगा मुझे, order of 8/5 plus z is 5 in the group। पूरी बात कहना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में आएगा, अदरवाइज तो रट्टा मार जिंदाबाद है ही। है कि नहीं है, बताइए। अच्छा, तो QZ में आपको 10 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो आप कहेंगे 1/10 प्लस जेड का जो ऑर्डर होगा वो 10 हो जाएगा। किसी ने आपसे कहा 50,000 ऑर्डर का बताइए, तो मैं कह रहा हूं भाई साहब एक तो हमसे ले जाओ, 1/50,000 प्लस जेड जो एलिमेंट होगा QZ का, उसका ऑर्डर 50,000 निकलेगा। अब तो आपको मजा आने लगा, यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी भी ग्रुप में मैंने नहीं देखा कि जिस ऑर्डर का एलिमेंट मैं मांगू आप दे दे। अब समझ में आया जब मैंने कहा था डिकोडेड, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट? आई होप नाउ यू विल बी फीलिंग दैट ब्यूटी। यस और नो? डोंट फॉरगेट टू पुट योर व्यूज, ओके ओके, आई विल डेफिनेटली लुक ऑन दैट। चलिए, तो कहने का मतलब, अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो यूपीएससी क्वेश्चंस जो आपको नजर आएंगे, मान लो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप फॉर विच every element is of finite order, every element is of finite order, so your answer will be QZ। सिंपल, सिंपली लिखिए। अगर आपको आंसर अपना लिखना हो एग्जाम हॉल में, आप इतना एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, योर आंसर इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और फाइनली लिख दीजिए इफ, यहां पर लिख सकते हैं, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर n 1/n प्लस z इज एन एलिमेंट
ऑफ ऑर्डर n। तो अगला पॉसिबल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि एक ऐसे ग्रुप का एग्जांपल दीजिए जिसके एलिमेंट के पास हर नेचुरल नंबर के ऑर्डर के बराबर, मतलब हर ऐसा ऑर्डर जो है वो हर नेचुरल नंबर के लिए दे सकता है। अब नेचुरल नंबर अगर आपने कह दिया, आप कहेंगे सर वो तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन आप जब बोलेंगे दिस इज सम पर्टिकुलर नेचुरल नंबर, जब आपने कह दिया कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट की बात नहीं होती है। नहीं तो आप बताओ कौन सा नेचुरल नंबर है जो इनफाइनाइट होता है? भाई जब आपने कहा इसका मतलब तो एग्जिस्टेंस आपने एश्योर किया ना। आप ही बताइए ना, मुझसे क्या पूछते हैं? तो एक ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप जिसका हर एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का है, आंसर इज क्यू जेड। एक ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप जिसके पास हर नेचुरल नंबर के बराबर ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, आंसर इज क्यू जेड। अब आप कहें सर एग्जाम में कैसे लिखना होता है, इतना एक्सप्लेनेशन लिखिए और नीचे ये लाइन लिख दीजिए, योर जॉब इज डन। 10 मार्कर क्वेश्चन में आधे पेज के अंदर यू हैव परफेक्टली आंसर्ड, देयर इज नथिंग टू मेंशन एक्स्ट्रा हियर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिकल, दैट्स प्योर मैथ्स। क्योंकि अगर आपको उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आधे पेज के अंदर आप आंसर देकर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा कि मेरे को लिखना ही है 2 पेज। इट इज नॉट एट ऑल। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स में। ऐसा नहीं कि हाँ क्यू जेड लिखा नहीं, क्यू जेड को कहा नहीं कि ये एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स, तो आपकी फिर बात अधूरी सी लगेगी। फिर ऐसा लगेगा कि आपने चीजों को रटा हुआ है, समझा नहीं पा रहे हैं आप अपनी बात को समझा दीजिए आधे पेज में या 1 पेज में, मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स मैटर्स। तो आज की कहानी हमने स्टार्ट की थी जेड एम जेड से। दूसरा टारगेट आपको दिया था क्यू जेड का, एक टारगेट एस एन ए एन और बचा हुआ है, उस पर भी बात करते हैं अभी। लेकिन बिफोर दैट आई होप दिस ब्यूटीफुल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। और ये इतना फेमस ग्रुप है, इतना स्टैंडर्ड ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम लिए बिना आपसे ये क्वेश्चन, कहीं उसने कहा क्यू जेड के बारे में या, लेकिन ये क्वेश्चन क्यू जेड का है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप कॉन्सेप्चुअली क्यू जेड को डिकोड कर रहे थे तभी आपको ये एहसास, ये फीलिंग, ये ऑब्जर्वेशन हो चुका था। कहिए हाँ या ना, ऐसा था या नहीं था, बताइए। चलिए, आई होप। अब सॉरी, एक और अपने पास है एस एन ए एन, उसको भी मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। आई होप यू विल एंजॉय दैट। तो द नेक्स्ट कैटेगरी, और इन 3 कैटेगरीज को आप अपने जहन में बैठा लीजिए, फैक्टर ग्रुप का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। द प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक अबाउट द फैक्टर ग्रुप, इट्स डेफिनेशंस एंड ऑल। टुडेज द क्वेश्चंस, दीज 2 कॉन्सेप्ट टॉक्स आर मोर देन एनफ फॉर यू, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स, सीएसई और फॉरेस्ट सर्विसेज। तो एस एन और ए एन के बारे में, मान लो जी ये ले लिया, एच ई एल ले लिया। हम जानते हैं ए एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। तो एस एन ए एन इज वेल डिफाइंड, ठीक है, फैक्टर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल से नहीं देखते हैं तब तक मजा नहीं आता है। S3 क्या होता है? I सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 टाउ 1 टाउ 2। कुछ लोगों के इसके रिप्रेजेंटेशंस नहीं याद होंगे तो मैं उनके लिए एलिमेंट्स भी लिख देता हूं, राइट। A3 क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशंस, राइट। तो अब आप क्या करेंगे? यू विल राइट ऑल पॉसिबल कोसेट्स। क्या करेंगे? राइटिंग ऑल पॉसिबल
कोसेट्स ऑफ A3 इन S3। तो एक तो A3 खुद कोसेट मिलता है, ठीक है, और दूसरा कोसेट अगर आप सिग्मा 1 A3 देख लें, सिग्मा 2 A3 देख लें, सिग्मा 3 A3 देख लें, तीनों के तीनों जो कोसेट्स मिलते हैं आपको वो इसी सेट, यही सेट मिलता है। तो दैट इज A3 हैज exactly 2 cosets in S3। That is order of S3A3 is 2। क्लियर है? और वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा चीजों में, तो हम लोग इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, आपको एक टर्म सिखाया है, इंडेक्स ऑफ H in G, that is the number of all possible cosets of H in G. If G is a finite order group, then this index of H in G is given by order of G upon order of H. So index of A3 in S3, that is order of S3 upon order of A3. Order of S3 is factorial 3, order of A3 is factorial 3 by 2. So index of A3 in S3 is 2, and that is verified here as well. क्यों? क्योंकि S3A3 is the collection of all cosets of A3 in S3. So moreover, if you want to check about order of Sn An, क्या मिल जाएगा? That is order of Sn upon order of An, that is n factorial by n factorial by 2, that is 2 itself. तो Sn An के अंदर केवल 2 कोसेट्स मिलेंगे, एक तो An मिलेगा और एक कोसेट का जो भी आपने Sn n सिंबल्स पर परम्यूटेशंस डिफाइन किए हुए हैं उसके हिसाब से इस टाइप का एक सेट चमक जाएगा आपकी नजरों के सामने। बात क्लियर हुई या नहीं? एकदम ईमानदारी के साथ कहिए। अगर आपको कोसेट्स लिखने नहीं आ रहे हैं, आज के कॉन्सेप्ट टॉक में अगर आपने ये फील किया कि Z4Z के कंपोजिशंस कैसे डिफाइन हो जा रहे हैं, या ये Sn An सर को इतना कैसे याद रहता है, मुझे नहीं आपको भी याद रह रहा होगा अगर आप रेगुलरली कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड कर रहे होंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट टॉक इज नॉट सिंपल वीडियोज ओनली। हर कॉन्सेप्ट टॉक के अंदर विद इन द 20 to 30 मिनट्स वी ट्राई टू पुट द मोस्ट condensed, most comprehend form for you, so that addressing the demand of exam becomes easier. क्लियर है? अब आप चाहें तो CSE और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के पिछले 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल के PYQs उठा लीजिए रिलेटेड विद द फैक्टर ग्रुप्स। you will realize कि nothing is beyond this concept talk and the previous concept talk. So within the 40 to 50 minutes, we have tried to touch all possible aspects related with the factor group and normal subgroups. क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट है तो चिल्लाइए। डाउट क्या, आपका कोई सजेशन होगा तो रखिए। और जब भी जस्ट 1-2 मिनट्स मोर, जब भी मैं आपसे बात करता हूं कि जब हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ में मूव कर रहे हैं, तो बीच बीच में पीरियोडिकली मैं आपको ये बताता रहता हूं कि डियर फेलोज, सिस्टमेटिक लर्निंग को कभी इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज दैट प्रोवाइड्स यू द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस UPSC. So if you ask to me, it is not about the knowledge in mathematics. It is all about how you learn the systematically, how you prepare in a right way, and how that right way can help you in performing exactly according to demand of UPSC. That is the whole sole purpose of all these concept talks. ठीक है? हर टॉक के अंदर
एक टॉपिक उठाते हैं, उसके डेफिनेशंस बताने की कोशिश करते हैं आपको, एक एक डेफिनेशन का मीनिंग क्या हो सकता है, क्या उससे इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। कई बार आपको मैथमेटिकल इतना एब्स्ट्रैक्ट नजर आने लगता है कि आप अपनी इंटरेस्ट को लूज कर जाते हैं। तो फिर विजुअलाइजेशन कराता हूं मैं आपको कि नेवर फॉरगेट टू विजुअलाइज द थिंग्स, देन ओनली यू कैन एड्रेस, यू कैन बी प्रिपेयर्ड एडिक्वेटली फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं विद द साइंस ऑप्शनल, तो ये मेरी लाइफ का एक विजन कैसे बन गया, कैसे मैं हमेशा फोकस करता हूँ, मतलब ह्यूमैनिटीज वालों को भी एंटरटेन कर लेता हूँ। द रीजन बीइंग कि हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारी अप्रोच है, वो लॉजिकल होनी चाहिए हमेशा। लॉजिकल, ये आपको हेल्प करता है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो पेरिफेरल ऑफ डिमांड ऑफ यूपीएससी एग्जैक्टली आप एड्रेस कर सकते हैं इफ यू हैव द लॉजिकल माइंडसेट। तो वो तभी आता है जब आप बीच के डॉट्स को इग्नोर करके हमेशा सिलेबस खत्म करने की ओर नहीं भागते हैं, आप उस पर रुकते हैं, ठहरते हैं, चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर समझदाने के बाद फिर आपके लिए काम आसान होता चला जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये आपके लिए पूंजी की तरह कार्य करता है, और पूंजी आपको तभी रिजल्ट देगी जब आपने वो पूंजी लगाई होगी। केवल दूसरे के अनुभव से सोचते रहेंगे कि उसने लगाई थी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर ग्रुप। Don't forget to put your suggestions and reviews. We will definitely consider your requirements as well, your demands as well. So it's enough for this concept talk. We'll meet in the next concept talk. Till then, keep learning, keep smiling. Good luck.